دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہاں کون سا سوال ہے۔ یہ دیا گیا ہے کہ 12 اور 18 کا HCF 6 ہے تو LCM تلاش کریں۔ اچھا، تو مجھے دو نمبرز کا HCF دیا گیا ہے اور مجھے LCM نکالنا ہے۔ جب میں یہ سوال پڑھتی ہوں تو سب سے پہلا سوال میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ آپ نے مجھے HCF کیوں دیا؟ اگر مجھے دونوں نمبرز پتہ ہوں تو میں LCM نکالنا جانتی ہوں۔ مجھے بس 12 کو پرائم فیکٹرائز کر کے لکھنا ہے، پھر 18 کو بھی پرائم فیکٹرائز کر کے لکھنا ہے، پھر ہر پرائم فیکٹر کی سب سے بڑی پاور لینی ہے اور مجھے میرا LCM مل جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے جس سے آپ یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمیں HCF دیا گیا ہے تو سوال ہمیں ایک اشارہ دے رہا ہے، جیسے کہہ رہا ہو کیا آپ وہ دوسرا طریقہ آزما سکتی ہیں جو آپ کو آتا ہے۔ اس کو حل کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، یہ تھوڑا چھوٹا طریقہ ہے۔ کیا آپ کو اس کا پتہ ہے؟ HCF اور LCM کے درمیان ایک تعلق ہے، ذرا سوچیں، کیا آپ کو یاد آ رہا ہے؟ وہ تعلق یہ ہے، اگر آپ کے پاس دو نمبرز ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں نمبرز کا HCF ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو انہی دو نمبرز کا LCM نکالنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کے پاس HCF ہے دو نمبرز کا، فرض کریں HCF ہے، اور پھر آپ کے پاس LCM ہے انہی دو نمبرز کا، ظاہر ہے، اور پھر اگر آپ کے پاس ایک اور مقدار ہے جو بس ان دونوں نمبرز کا پروڈکٹ ہے، میں اسے پروڈکٹ ہی کہوں گی، ان دونوں نمبرز کا دو نمبرز، تو یہ تین مقدار ہیں، ٹھیک ہے۔ HCF آپ کو نکالنا آتا ہے، LCM آپ کو نکالنا آتا ہے، پروڈکٹ یہ تو آپ ہمیشہ سے نکالتے آئے ہیں، بس دونوں کو ضرب دینا ہوتا ہے، پھر ان کے درمیان ایک تعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ HCF ضرب LCM یعنی HCF اور LCM کا پروڈکٹ برابر ہوگا دونوں نمبرز کے پروڈکٹ کے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں، اگر آپ سوچیں تو یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یہ کیوں کام کرتا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں اس بارے میں بہت سے سوالات ہیں تو ہم اس پر ایک اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ بس یہ دیکھیں کہ اس سے ہمارا مسئلہ واقعی بہت آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ کو یہ بات سچ لگتی ہے، کتاب میں بھی یہی لکھا ہے، تو ابھی کے لیے مان لیتے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ HCF ضرب LCM برابر ہے دونوں نمبرز کے پروڈکٹ کے۔ تو اب آپ یہ سوال کیسے حل کریں گے؟ اب آپ کو سارا پرائم فیکٹرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ بس کہیں گے کہ HCF مجھے دیا ہوا ہے، HCF ہے 6 تو یہ دیا ہوا ہے، یہ ضرب ہوگا LCM سے جو مجھے نکالنا ہے، LCM برابر ہوگا دونوں نمبرز کے پروڈکٹ کے، اور یہاں دونوں نمبرز ہیں 12 اور 18، تو 12 ضرب 18، اور اس سے میں اپنا LCM نکال سکتی ہوں۔ میں دونوں طرف کو تقسیم کروں گی، بالکل صحیح، 6 سے، تاکہ میرے پاس LCM برابر آ جائے۔ میں اس طرف کو تقسیم کروں گی 6 سے، اور پھر اس طرف کو بھی 6 سے تقسیم کروں گی، میرے پاس آئے گا 12 ضرب 18 تقسیم 6، اور ہم اس کا جواب نکال سکتے ہیں، 6 اور 12 ہوں گے، یہ اس طرح جائے گا، 2 ضرب 6 ہے 12، تو میں نیومیریٹر اور ڈینومینیٹر دونوں میں 6 سے تقسیم کر رہی ہوں، اور آپ کے پاس ہے 18 ضرب 2 جو کہ 36 ہے۔ تو ان دونوں نمبرز یعنی 12 اور 18 کا LCM ہے 36، لیکن آپ نے یہ عام طریقے سے نہیں کیا جس کے آپ عادی ہیں، اس بار آپ نے یہ نئی پراپرٹی یا نئے جواب کو استعمال کیا۔ تو مان لیں کہ یہی اصل مقصد ہے اس ویڈیو کا۔
इस वीडियो का असल मकसद ये है कि आपको ये नतीजा याद हो जाए कि HCF ज़रब LCM बराबर है दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। अब मैं जो करना चाहती हूँ वो ये है कि इस दो को यहाँ खास तौर पर नुमाया करूँ, ठीक है। यहाँ मरकजी टर्म यही दो है, क्योंकि अगर यहाँ 3 नंबर्स होते, अगर आपको HCF दिया होता 12, 18 और कुछ एक और नंबर का, तो तीनों नंबर्स का HCF होता 6 और LCM निकालना होता। आप ये नहीं कर सकते। HCF और LCM इन 3 नंबर्स का प्रोडक्ट नहीं होगा। तो यहाँ 2 वाकई अहम लफ्ज़ है, ये अहम शर्त है। तो जब तक सवाल में सिर्फ 2 नंबर्स हों, 2 नंबर्स का HCF हो, तब ये नतीजा काम करता है। और यहीं एक सवाल पैदा होता है ना? क्यों ऐसा है कि ये नतीजा आता है? ये कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए काम करता है। ज़रा सोचें इस बारे में। मेरा मतलब है, ये सोचने के लिए बहुत अच्छा सवाल है। जब आप ये कर रहे हैं, ठीक है, इन चीज़ों को समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 1 या 2 और सवाल इसी तरीके से हल करें। तो आएं ऐसा करते हैं। चलें एक और सवाल हल करते हैं जिसमें हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। अब इस सवाल में मेरे पास 2 नंबर्स का HCF है 11 और LCM है 693। तो दोनों HCF और LCM मुझे दिए गए हैं। इनमें से एक नंबर है 99, दूसरा नंबर ढूंढें। अब आप इस सवाल के बारे में कैसे सोचना चाहेंगे? आपने अभी ये नई प्रॉपर्टी सीखी है, तो आपके जहन में आ रहा होगा, हाँ, मैं ये ज़रूर इस्तेमाल कर सकती हूँ। लेकिन इससे पहले कि आप ये फैसला करें, हमेशा तस्दीक करें। देखें, यहाँ 2 नंबर्स हैं, तो ये काम करेगा। अगर 3 या 4 या 5 होते तो ये काम ना करता। तो ये 2 नंबर्स हैं, तो हाँ, हम ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो प्रॉपर्टी क्या है? HCF ज़रब LCM बराबर होगा दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। फिलहाल हम इन दोनों नंबर्स को कह लेते हैं N1 और N2। बस ये देखें, ये सिर्फ इन 2 नंबर्स के लिए नाम रख रही हूं जिन्हें हम ढूंढ रहे हैं। तो इस सवाल में वो ये कर रहे हैं कि हमें HCF और LCM दे रहे हैं और एक नंबर दे रहे हैं और दूसरा नंबर पूछ रहे हैं। तो आप अभी रुक सकते हैं, क्योंकि इसके बाद बस नंबर्स को सही जगह रखना है और वो नंबर निकालना है जो हमें चाहिए। अब मैं ये करने लगी हूं। तो HCF क्या है? HCF है 11। तो HCF है 11 ज़रब LCM है 693। 693 इनमें से एक नंबर है 99। 99 और दूसरा नंबर वो है जो हमें चाहिए। तो अब मैं इसे बस N2 कह देती हूं। तो अब मैं ये कैसे करूं? मैं दोनों तरफ को 99 से तकसीम कर दूंगी। तो इससे मुझे मिल जाएगा N2। N2 बराबर है, मैं बस ये सब यहां ले आ रही हूं, ठीक है। असल में मैं ये इसी तरफ रख सकती हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 11 ज़रब 693, 11 ज़रब 693 तकसीम 99। 693 तकसीम वही 99 जिससे मैंने दोनों तरफ को तकसीम किया था। तो 99, और शायद अब हम बाएं तरफ पर जा सकते हैं। तो यहां क्या होता है? तो मुझे पता है कि 11 और 99 आसानी से तकसीम हो जाते हैं। ये है 9 ज़रब 11, तो मेरे पास ये है 9 और 693, ये भी शायद तकसीम हो जाए, क्योंकि हम एक नेचुरल नंबर ढूंढ रहे हैं। तो 69 9 से कितनी बार तकसीम होता है? 9 7 बार 63, तो 7 बार। आपके पास क्या है? 69, तो 6 बाकी बचता है 63 में से 77। तो ये हो गया दूसरा नंबर है
77। मैं इसे इस तरफ पर भी आजमा सकती हूँ, 77, और ये आ गया। तो ये नई प्रॉपर्टी, जैसा कि आप देख सकते हैं, काफी मुफीद है। ये असल जिंदगी में किसी और चीज के लिए नहीं, कम अज कम इन सवालों के जवाब देने के लिए जहां हमें इनमें से 3 चीजें मालूम हों और एक निकालनी हो। तो जितने भी सवाल आप देखेंगे, बल्कि ज्यादातर सवाल ऐसे होंगे जहां आपको HCF, LCM और एक नंबर दिया जाए, या LCM और 2 नंबर्स, या HCF और 2 नंबर्स। बस इसी किस्म के सवाल यहां पूछे जा सकते हैं। तो ठीक है, आपको यहां सैकड़ों सवालों की मशक करने की जरूरत नहीं है, ठीक, क्योंकि आप जानते हैं कि सारे सवाल इसी तरह से आएंगे। आपको बस ये देखना है कि इन 3 में से आपके पास कौन सी चीज है, और फिर बाकी को निकालना है। तो बस यही सब कुछ है जो हमें इस खास प्रॉपर्टी में सीखना था, सवाए एक बड़े सवाल के, जो है ये प्रॉपर्टी सही क्यों है, क्यों, ये कैसे काम करती है, क्या हम, ओ नहीं, ये तो इंक फैल गई, तो ये प्रॉपर्टी क्यों काम करती है। और ये भी पूछना है कि ये सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही क्यों काम करती है, जैसे अगर यही चीज n ज़रब n1 ज़रब n2 ज़रब n3 ज़रब n4 या कुछ और हो तो ये नहीं चलती। तो ऐसा क्यों है, और मैं ये अलग वीडियो में बताऊंगी। शायद मैं इसका नाम रखूंगी HCF और LCM प्रोडक्ट का तस्वुर करना, या कुछ ऐसा। लेकिन इससे पहले कि आप वो वीडियो देखें, मैं चाहती हूं कि आप इस बारे में सोचें। और इशारा यह है कि बस ये सोचें कि HCF असल में है क्या। तो जब आप 2 नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करते हैं और HCF निकालते हैं, तो असल में आप क्या कर रहे हैं? आप हर प्राइम फैक्टर्स की कम से कम पावर्स को चुन रहे हैं, और LCM में आप सबसे बड़ी पावर्स चुनते हैं, ठीक है। तो सोचें कि जब आप ये कर रहे हैं तो असल में हो क्या रहा है, और फिर इसी तरह सोचें कि प्रोडक्ट क्या है। जैसे जब आप 2 नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करते हैं और सोचते हैं कि प्रोडक्ट क्या है, और जब आप इस तरह सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसीलिए ये 2 नंबर्स की सूरत में काम करता है और ज्यादा नंबर्स की सूरत में क्यों नहीं करता।